बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर फर्स्ट। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। लेक्चर नंबर 11 है। टॉपिक का नाम है मुस्लिम साइंटिस्ट इन देयर कंट्रीब्यूशन, मुसलमान साइंसदानों की कारकर्दगी। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि मुसलमान साइंसदानों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन द फील्ड ऑफ साइंस में फ्रॉम 8 to 15th century. So their views are highly respectable. In this lecture we will discuss a few Muslim scientists in their contribution in detail. So the first one is Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan was born in 721 AD and he was died in 815 AD. AD stand for what? AD stand for Anno Domini. Anno Domini actually is a Latin word which represent the year after the birth of Jesus Christ. यानी इस तारीख का सिलसिला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के बाद जारी रहा। जीसस क्रिस्ट। मैं दोबारा आपको कहता हूं कि इसी तारीख का सिलसिला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के बाद जारी रहा। नाउ वी विल सी दैट where Jabir bin Hayyan was born. Jabir bin Hayyan was born in ईरान। वो ईरान में पैदा हुआ था। He introduced experimental chemistry. Experimental chemistry first time introduced by Jabir bin Hayyan. Experimental chemistry is that chemistry in which we perform practical experiment and chemistry laboratory. All the practical work that we perform inside the chemistry lab, that work is called experimental work. So we perform chemistry experiment. So these experiments are called experimental chemistry. Next, he wrote a number of books on plants and animals. उनमें से कुछ बुक्स, द फर्स्ट वन अल हैवान एंड द सेकंड वन इज अल नबातात। बोथ आर अरेबिक वर्ड। अल हैवान मीन अबाउट एनिमल। दिस बुक was about the animal and the second was al nabatat. This book was about the plants. यानी इन ही दो बुक्स में, एक ही बुक्स में प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद और सेकंड बुक्स में अल हैवान, इसमें जानवरों के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद। ही वॉज आल्सो एन एस्ट्रोनॉमर। वो एक एस्ट्रोनॉमर भी था। एस्ट्रोनॉमर कहते हैं माहिर फल्कियात। एस्ट्रोनॉमर द पर्सन हु नोज अबाउट द नॉलेज like planets, star, moon, galaxies, etc. The second one is pharmacist. Jabir bin Hayyan was also a pharmacist. Pharmacist, the person who knows about the drugs. A branch of biology that we have discussed in previous lecture, pharmacology. Pharmacology is the study of drugs. Those who have knowledge about the drugs, that person is called a pharmacist. इसी के साथ साथ वो फिजिशियन भी था, डॉक्टर, फिलासफर भी था, जिसको हम फलसफी भी कहते हैं। फिलासफर फिलोसोफिया से डिराइव हैं। फिलोसोफिया इज अ ग्रीक वर्ड, मीन्स लव ऑफ विजडम। विजडम कहते हैं, लफ्जी मतलब है अक्ल को कहते हैं।
फिलॉसफी किसको कहते हैं? फिलॉसफी एक्चुअली is the general and fundamental problem such as those connected with realities, existence, values, mind, reasoning, as well as about the knowledge and languages. All those things that we feel within the universe and different questions come in our mind. These different type of question and problems we will discuss in philosophy. Next, an engineer, वो एक इंजीनियर भी था. Next हमारे पास है अब्दुल मालिक आसमाई. He was born 740 and he was died 840 AD. He was born in Basra. Basra is a place located in Iraq. एक जगह का नाम है इराक में. वो इराक में पैदा हुआ था. He was specialist in animal science. वो animal science में specialist था. Animal science is also called animal husbandry, which knows about the animals. He wrote a number of books on plant and animal life. उसने बहुत सी किताबें लिखी. उनमें से कुछ Al-Khail. The first book is Al-Khail. Al-Khail is Arabic word which is about the horse. The book Al-Khail is about the horse. Different knowledge were present in this book about the horse. Al-Ibil, Ibil कहते हैं ऊंट को. This book was about the camel. यानी इसमें कैमल के जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, मालूमात है, मौजूद है. अशा अरेबिक वर्ड है, शीप को कहते हैं. दिस बुक वाज अबाउट द शीप. अल-वहूश, दिस बुक वाज अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स. जंगली जो एनिमल है, दोज एनिमल दैट आर लिविंग फ्रीली विद इन द वाइल्ड. जंगली जानवर जिसको हम कहते हैं. खलकुल इंसान, ये भी अरेबिक वर्ड है. इन दिस बुक्स वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी. पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी. नेक्स्ट है अबू अली सीना. तारीख पैदाइश है और ये तारीख वफात है. बुखारा में पैदा हुआ था, विच इज लोकेटेड इन उज़्बेकिस्तान. हिज मोस्ट वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. बहुत मशहूर किताब है अल कानून फिल तिब, इन विच ही डिस्क्राइब 130 डिफरेंट डिजीज ऑफ ह्यूमन आइज. और इसी के साथ साथ इसी में इंसान के आइज के स्ट्रक्चर और इंसान के आइज के फंक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है. नेक्स्ट, ही वाज एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में भी एक्सपर्ट. एस्ट्रोनॉमी पहले हमने डिस्कस किया. माहिर फल्कियात, फिजिक्स में भी एक्सपर्ट और पैलियोंटोलॉजी में भी एक्सपर्ट. पैलियोंटोलॉजी इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ biology that we have discussed in previous lectures. Paleontology, it is the study of fossils. फॉसिल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी कहते हैं. What is fossil? The did remain a past extinct organism. The did remain a past extinct organism. The did remain of past extinct organism. वो organisms that they were present in early time, so their no member are present in present time. उसकी जो बाकी पार्ट्स हैं,
चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो या इम्प्रिंट फॉर्म में हो, उसकी बाकी पार्ट्स, बाकियात, बाकी अज्जा को हम क्या कहते हैं? फासिल कहते हैं। तो उससे हम फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि प्रीवियस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो किस तरह थे और मौजूदा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हमारे पास है अबू उस्मान उमर अल जहेज। तारीख़ पैदाइश 776 और तारीख़ वफ़ात 869 AD। ही रोट द फेमस बुक अल हैवान। उसका जो मशहूर किताब था दैट वाज अल हैवान, in which he described seasonal migration of fish in river Tigris. सीजनल माइग्रेशन ऑफ फिश। अगर हम फिश की बात करें तो कुछ फिशेस वो माइग्रेशन कर रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह को वो एक खास सीजन में वो जाते हैं। एंड सम फिशेस दे माइग्रेट in a specific season from one area to another area, and they passed away a few kilometers. Why they migrate from one place to another place? They migrate for reproduction के लिए वो माइग्रेशन कर रही है, for spawning, for food, और इसी तरह फॉर बेटर क्लाइमेट। वो डिफरेंट मकासद के लिए वो माइग्रेशन कर रही है। तो उसको हम कहते हैं सीजनल माइग्रेशन ऑफ फिश इन रिवर टाइग्रस। उसने सीजन 5 फिश की सीजनल माइग्रेशन पढ़ी। कौन सी रिवर में? रिवर टाइग्रस में। इट इज वन ऑफ द रिवर प्रेजेंट इन तुर्की। नेक्स्ट ही डिस्क्राइब द लाइफ सिस्टम ऑफ आंट। उसने आंट की लाइफ सिस्टम को डिस्कस किया कि आंट की जो लाइफ सिस्टम है वो किस तरह है, हाउ दे रिप्रोड्यूस, हाउ दे गेट देयर न्यूट्रिएंट, व्हाई दे लिविंग इन ग्रुप, व्हाई दे लिविंग इन society, how they behave in society. All these different type of activity he will discuss in his book about the ant. Next अल-फाराबी। तारीख़ पैदाइश 870 और तारीख़ वफ़ात 950 AD। अल-फाराबी, his famous books are किताबुल नबातात एंड किताबुल हैवानात। उसने और काम भी किया है, फिलासफर भी था अल-फाराबी, केमिस्ट में भी माहिर था, मैथमेटिक्स में भी माहिर था, लेकिन उसी के साथ साथ बायोलॉजी में उसका जो रोल था, उसने 2 किताबें लिखी, किताबुल नबातात एंड किताबुल हैवान। किताबुल नबातात इट वाज अबाउट द प्लांट्स, इन द सेकंड वन किताबुल हैवान इट वाज अबाउट द एनिमल्स। इन्हीं 2 बुक्स में, एक में प्लांट के बारे में डिस्कस किया था और दूसरा बुक्स दैट वाज अबाउट द एनिमल। तो these are some of the Muslim scientists in their contribution. The remaining scientists that we will discuss in coming chapter inshallah. आज के लिए इतना ही। Thank you. Allah Hafiz.